नमस्कार। कुछ दिन पहले हमने एक Sir, one second. You can be a little more chill about it. Your namaskar is a little too serious. Okay, so you're saying namaskar should be more chilled out, huh? Yeah. वो नमस्कार चिल्ड आउट नहीं था, उसको फिर से कर रहे हैं। नमस्कार। कुछ दिन पहले हमने आपको कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में बताया, जो हमारे 5 कोर वायदे हैं उनके बारे में बताया और आपसे सुझाव मांगे। अब आपने इतने सुझाव भेजे कि ये मेरी जो टीम है ये पूरी ओवरवेल्म हो गई है। काफ़ी लोगों ने अच्छे सुझाव दिए अलग अलग चीज़ों के बारे में। मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 लोगों को फ़ोन करके उनसे पूछें, थोड़ा जो उन्होंने सुझाव दिया उसके बारे में उनसे थोड़ी बात करें। Thousands and thousands of mails here. There's a lot of mails on अग्निवीर। अग्निवीर को जो स्क्रैप करने का हमने निर्णय लिया है वो काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा है। मिडिल क्लास के काफ़ी लोग टैक्सेस की बात कर रहे हैं। अलग अलग टाइप का पॉजिटिव फीडबैक आया है। मैं थोड़ा 2-3 लोगों के मैसेज पढ़ता हूँ। रूफस क्रिस्टी जी हैं, ये बस नमस्ते कर रहे हैं और बेस्ट विशेस दे रहे हैं चुनाव की। जिम बीस्ट सेज मेक स्लोगन जॉब वर्सेस बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। अजय चंडेल जी कह रहे हैं थैंक यू फॉर ड्राफ्टिंग अ ग्रेट मैनिफेस्टो। Some of my suggestions during campaigning: keep strong focus on inflation, unemployment, corruption of current government. काशीराम जी ने सिर्फ 2 शब्द बोले हैं, बहुत अच्छा। मनीला स्वामी says, please I want one mobile please. Okay, so we have some interesting stuff here. Madhuri is writing, I'm Madhuri working as an insurance professional. I've been trying to reach you and finally could connect with you. As a middle class working woman, I think it's important that you should also work on taxes and come out with some solution. We are paying income tax, professional tax, road tax, property tax, GST on all items, including groceries bought online. On top of it, banks are taking us for a ride. I hope you look into these issues for common people and bring in some solace to us. Should we call Madhuri then? Madhuri. She's probably driving to work. From all sides. So one second, Giving Madhuri is money on to the the phone. youth for free is very dangerous for long term. Please think and consider this. India has a great potential to surpass all. Hi, Madhuri. Hi, how are you? I'm fine. How are you? I'm fine too. We got your email, so tell me a little bit about. Is it really you that I'm talking to? They call me Rahul Gandhi. I don't know. I think it is. Great thing to talk to you. Would you like to call us on FaceTime so that you can be sure that it's me? I've just got up. Okay, you just got up. So what's your, if there was one suggestion that you would want to give us for our manifesto, what would it be? Like if there's one thing we could focus on, you said think about taxes. Is there a suggestion that you have? Taxes is the one thing. Second thing is you really need to work on, these kind of things. The banks, what they are doing currently. What they are doing is कि अगर A bounce हो गया suppose, so the lender bank is also debiting us. The bank where we are having a saving account where it got bounced, they are also debiting us. It is becoming a very costly affair for all of us. We also need to work on the education cost of kids. It is becoming too costly for a common man to manage. Do you have 1 kid or 2 kids or? No, I have only one son. He have just entered his 12th standard. And what does he want to do? He wants to pursue engineering in AI. He's very much interested in artificial intelligence. I've got a very interesting Zoom call that I'm doing with some AI experts. Would you be interested in listening in on that Zoom call? Yeah, he would definitely be. Okay, I'll try and see if we can bring him into that call at some point. So he'll enjoy that. And we'll think of doing something about it. Thank you very much for the chat. Okay, bye. Thank you. Bye. Arshan here. I've gone through the manifesto of Congress. It is very impressive. But he makes a point. He's concerned that we're going to be giving 1 lakh to every youngster. We middle class people are dying from all sides, sir. Giving money to the youth for free is very dangerous for the long term. Arshan, we're not giving money for free. हम एक apprenticeship का कानून बना रहे हैं. Apprenticeship की गारंटी, apprenticeship का हक, जिससे हर युवा को अप्रेंटिसशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिले। वो फ्री नहीं है, उसको काम करना पड़ेगा। 1 साल उसको काम करना पड़ेगा।
उसमें ट्रेनिंग होगी उसकी, और 1 साल में उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, मगर फ्री में उसको नहीं मिल रहा है। और ये एक प्रकार से इन हाउस ट्रेनिंग का तरीका है, स्किल बिल्डिंग का तरीका है, और ये लोग काम करेंगे, ये फ्री में नहीं है। तो आप घबराइए मत, फ्री में कुछ नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ होता है तो कोई नहीं कहता, प्रेस में कोई नहीं कहता कि फ्री भी दिया, कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सपोर्ट किया है। तो जब किसान के लिए कर्जा माफी होती है तो वही लॉजिक होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक लॉजिक यूज करिए, 2 लॉजिक मत यूज करिए, एक किसानों के लिए, एक अरबपतियों के लिए। अगर आप अरबपतियों की लॉजिक यूज करना चाहते हैं तो फिर उसी लॉजिक को किसान के लिए यूज करिए। वसंत कुमार जी लिखते हैं, मैनिफेस्टो इज गुड सर, सम ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर मिस्ड, एमएसपी ऑफ कॉटन 8000 पर क्विंटल। तो एमएसपी के हम स्पेसिफिक्स में नहीं गए हैं, बट लीगल एमएसपी हमने प्रॉमिस की है कि किसानों को लीगल बेसिस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। ये ऐतिहासिक डिसीजन है। दूसरा हमारा फोकस मैनिफेस्टो में, जो पिछली बार मैंने नहीं कहा, कि जो जॉब क्रिएशन है, पब्लिक सेक्टर में जॉब क्रिएशन है, 30 लाख जॉब्स देने की हमने बात कही है, बट जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है उसको भी हमने मैनिफेस्टो में सपोर्ट करने की स्ट्रेटजी बनाई है, और उससे हिंदुस्तान में जॉब्स क्रिएट हुई। देखिए, एक बात हिंदुस्तान को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हिंदुस्तान के युवाओं को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जॉबलेस ग्रोथ से इस देश का फायदा नहीं होता है। आपकी 9% ग्रोथ हो, 10% ग्रोथ हो, 15% ग्रोथ हो, मगर अगर आप युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे, अगर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस ग्रोथ का कोई फायदा नहीं। मेन डिफरेंस हमारे में और बीजेपी में फर्क क्या है कि हम जॉब ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ग्रोथ विद जॉब्स, और वो ग्रोथ विद अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। ओवरऑल मैनिफेस्टो की जो हमारी स्ट्रेटेजी थी, वो जो हिंदुस्तान में गरीब अमीर का इम्बैलेंस बन गया है, 2-3% लोग बहुत अमीर हो गए हैं, 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है, उसमें हम थोड़ा सा करेक्टिव एक्शन लेना चाह रहे हैं। और जो वर्किंग क्लास है, हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, उनको हम सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे सुझाव मांगे और आपने 1-2 दिन में लाखों सुझाव भेजे, और सुझाव भेजते रहिए, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें डायरेक्शन मिलती है। धन्यवाद।